Hello girls, you are welcome to our history class. Children, before we start our today's topic, let us discuss about few points of the previous session in which you were explained about the economic expansion of Rome. Do you remember? You were told that total infrastructure was available in plenty, which helped in expansion of Rome and its economic development. You were also told how there was healthy competition between the landlords. Regarding that, I had explained the topic with Spanish olive oil. The example of Spanish olive oil which had a vast market in different places. So let's start our today's topic, controlling workers. हमारा आज का विषय है सेशन नंबर 7 के आज का विषय है कंट्रोलिंग वर्कर्स, श्रमिकों पर नियंत्रण। बच्चों, जहां कारोबार इतना फैला है, विशाल साम्राज्य है, आर्थिक संपन्नता है, स्पष्ट है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत होंगे। यदि व्यापार और वाणिज्य उन्नत है तो स्पष्ट है वहां मैन पावर या श्रमिकों का विशेष भूमिका रहेगी। So children, on such a vast economic expansion, workers at different level were required, where people of different setups means people were of different levels, means you can say that they were of different skills, they were skilled in different arts. So how were those people, how were the laborers treated? We'll see in today's point, the controlling of workers. The first point is, children, that slavery was rooted in Mediterranean and near the eastern area. अर्थात जो दास प्रथा थी वह भूमध्य सागर से लेकर निकटवर्ती पूर्व तक फैली हुई थी। अर्थात स्पष्ट है कि गुलाम प्रथा थी, गुलामों को रखने की व्यवस्था थी। The second point is Christianity, when it emerged as a state religion in 4th century, that also was not able to challenge the slavery, which was like an evil practice. अर्थात क्रिश्चियनिटी को जब एक राजधन बना दिया गया रोमन एम्पायर में, वह भी इस दास प्रथा जो एक आप कह सकती हैं समाज में एक कुप्रथा के समान थी, वह भी इस कुप्रथा पर नियंत्रण लगाने में सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन अबाउट King Augustus, about whom you have heard in the previous sessions, who was a powerful ruler. In his time also, out of 75 million population, there were 3 million slaves. किंग अगस्टस का शासनकाल, जिसके बारे में आपने पहले सुना है, जो एक निरंकुश शासक था, सफल योद्धा था, कूटनीतिज्ञ था, उसके शासनकाल में भी जहां 75 मिलियन करीब पॉपुलेशन था, उसमें 3 मिलियन संख्या दासों की थी। So that also shows that slavery was developed as an institution. Clear? Next point, slaves were investment, means a wealthy farmer or you can say the landlords, means they were in need of such people who will work on their farms, as they had big estates and they had kept slaves because they wanted to make those people work according to their wish and under their pressure. अर्थात ये जो गुलाम होते थे, इनको एक पूंजी के रूप में लगाया जाता था। पूंजी उनकी होती थी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की। पूंजी से मतलब है कि जितना जिनके पास गुलाम रहेगा, उनका काम उतना ही, उनके कारोबार उतने ही फैले हुए हैं, क्योंकि इन गुलामों के द्वारा ही वो बड़े बड़े अपने स्टेट्स में जो फार्म से लोग खरीदते थे उसमें ये काम कराते थे, क्योंकि ये गुलाम ही ऐसा कर सकते हैं जो मालिक के निर्देश के अनुसार हर कार्य करें। वहाँ उनको अपनी इच्छा की कोई स्वतंत्रता या अपने कार्य को अपने तरीके से करने की इन गुलामों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रोमन upper class who treated the slaves
वेरी क्रूएली। कहा जाता है कि जो उच्च वर्ग था रोमन एम्पायर का, वह इन गुलामों के साथ बड़ी ही क्रूरता का व्यवहार करता था, जबकि द ऑर्डिनरी क्लास वे लिटिल बेटर टू देम, मीन्स द ऑर्डिनरी पीपल वे लिटिल ह्यूमन टू द स्लेव्स। अर्थात जो समाज के जो साधारण लोग थे, जो कॉमन मैन थे, वो इन दासों के साथ थोड़ी रियायत करते थे, इनके साथ उनका क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं था। So here you will hear about story by the historian Tacitus। एक इतिहासकार टेसिटस के नाम के हैं। उन्होंने गुलामों के साथ कैसा व्यवहार था, कैसा क्रूरपूर्ण व्यवहार था, एक कहानी के द्वारा आप सुन सकती हैं। Children, there was a landlord who died, and how he died? Because he was murdered by his slave. Means if this happens, or if such incident takes place, or if a person, a landlord, anyone is killed by the slave, the punishment was that because of one murder by, it can be by a slave also, then all the other slaves living under one ceiling should be punished. That was the custom of ancient Rome। अर्थात प्राचीन रोमन व्यवस्था में यदि किसी की हत्या एक गुलाम के द्वारा होती है, तो उस गुलाम के साथ रहने वाले जितने भी गुलाम थे, उन सभी को पनिशमेंट मिलता था। क्लियर? But as the landlords moved forward to punish the slaves, what happened? All the ordinary people gathered and agitated against such punishment। अर्थात जब ऐसी स्थिति आई, जब एक गुलाम की गलती की सजा सभी गुलामों को देने के लिए जो भूमिपति थे, जो मर्चेंट्स थे, जब आगे बढ़े, तो सामान्य जनता ने प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, इस लॉ का विरोध करना आरंभ कर दिया कि यह गलत है, किसी एक की गलती की सजा उसी को मिलनी चाहिए। एंड दैट वाज डिसाइडेड आफ्टर दैट। सो दैट शोज दैट इट वाज अ प्रोग्रेसिव चेंज विच हैड टेकन प्लेस इन रोमन सोसाइटी। इट वाज अ गुड चेंज। अर्थात ये कदम जो कॉमन मैन के द्वारा उठाया गया वह सराहनीय था, क्योंकि अब इस प्रकार का पनिशमेंट अन्य गुलामों को, किसी एक की गलती की सजा अन्य गुलामों को अब नहीं उठानी पड़ेगी। Next is children, that with the establishment of peace in the 1st century, means you are reading in this chapter about the 1st to 3rd century, which is known as early empire, and from 3rd to 8th century, children, it is known as late empire. Many times before also I have mentioned this sentence. So there was a phase where no battles were fought. So when no battles were fought means no requirement of slaves, no requirement of such people who are supposed to send to the battlefield, which shows that there was no need or there was no supply of slaves. It means slavery started declining। पीछे भी आपको मैंने कई बार बताया है कि एक ऐसा शासन काल आया, एक ऐसा समय आया रोमन साम्राज्य में जहां युद्ध समाप्त कर दिए गए, और वह समय क्या कहलाने लगा? शांति का समय। खास करके अगस्टस का शासन काल, क्योंकि उस समय तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा चुकी थी, जिस परिप्रेक्ष्य में सिकंदर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जब अब विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई है, युद्ध की जरूरत नहीं है, तो स्पष्ट है कि शांति रहेगी, क्योंकि शासक भी काफी कुशल है, अन्य राज्य उसके राज्य पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो शांति और सुव्यवस्था है, इसलिए गुलामों की जरूरत नहीं है, तो गुलामी कहीं ना कहीं अब पतन की ओर जा रही है। बट चिल्ड्रेन, देयर वर पीपल हु वर इन यूज ऑफ स्लेव्स। ऐसे लोग थे जिनका काम गुलामों के बिना नहीं चलता था। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके परिस्थिति, दी हुई परिस्थिति में, उनकी कंडीशन में, उनके निर्देशों के अनुसार काम करें। सो दे वर लुकिंग फॉर सच अल्टरनेटिव ऑफ वर्कर्स हु विल हैव टू वर्क फॉर देम, एंड एट दैट टाइम द स्लेवरी वाज कमिंग टू एन एंड। सो व्हाट डिड दे डू? There was an other alternative, that they started slave breeding, means that the children of the slave couple will also be slaves। अर्थात जो गुलाम कपल होते थे उनके बच्चों को भी गुलाम की तरह रखा जाता था। अब उनसे गुलामी करवाई जाती थी, ना कि अन्य स्थानों से और गुलामों की सप्लाई को बढ़ावा दिया जाए।
एंड द सेकंड अल्टरनेटिव वाज दैट दे थॉट ऑफ वेज लेबर, अर्थात पारिश्रमिक देकर श्रमिकों से काम करवाना. सो कीप इन माइंड विद दिस ओनली, वेज लेबर मीन्स पेड लेबर कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन द सोसाइटी. So children, these paid labor were little cheaper than the slaves. Why children? Because they used to come, they used to go do the work and they used to go back to their house. Means no such responsibilities were to be borne by the employer. अर्थात दास जब रखते थे तो दासों की सारी जिम्मेदारी उस मालिक की होती थी जो रखता था. खिलाना पिलाना पहनाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर कुछ, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनको रहने की जगह देना. लेकिन जब ये श्रमिक आते थे काम करने तो दिए हुए निर्देश के अनुसार निर्देशित कार्य जो सीमा रहेगी या जितने घंटे तय होंगे उसमें ये काम करते थे और ये घर चले जाते थे. तो इस प्रकार इनकी जिम्मेदारी उस मालिक पर अधिक नहीं रहती थी. So children, these wage laborers were hired for public work. इस प्रकार के श्रमिक व्यवसायियों के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा हायर किए जाते थे. So free laborers, be very clear with this word free labor, या नहीं कि वो लेबर को पैसा नहीं देते. Means these people used to come, they work and go. अर्थात आप इन्हें स्वतंत्र श्रमिक कह सकती हैं. They were used by business class, अर्थात जो business class था, जो उद्योगपति थे, इस प्रकार के श्रमिकों का वे इस्तेमाल करते थे. क्लियर? जहां उन्हें कम जिम्मेदारियां अपेक्षाकृत निभानी पड़ती थी. The next is about children the Roman agricultural writer. You can see the board. I mentioned two names. Writer Columella. In the 1st century, he was the writer of Spain. What does he say regarding this system? That landlords should always keep stock of implement and tools used in agriculture, such as labors and tools. If it is stored, it will be benefiting, else he has to face many shortcomings. उनका कहना है, कॉलमिला का कहना है कि जो भी ये लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भूमिपति हैं, इनके पास अपने कार्य करने के लिए, अपने कार्य को करवाने के लिए जो भी इनको संसाधन चाहिए, इनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों. अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध के लिए श्रमिक भी होते हैं, औजार होते हैं, जल है, बाकी प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो प्रकृति पर निर्भर ना रहकर ये खुद भी अपनी तरफ से इकट्ठा कर सकते हैं. तो अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में, उन भूमिपतियों के पास ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध रहते हैं तो इसका उन्हें लाभ मिलता है. And the second point he says that the employees should have supervisors to check the work of the people which are formed in small groups. अर्थात कॉलमुला का कहना है कि जो ये काम करने वाले, जो ये श्रमिक हैं, इनके छोटे छोटे ग्रुप बना देने चाहिए और उस ग्रुप के लिए एक इंचार्ज होना चाहिए जो उनको काम करने का निर्देश दे, उनके काम करने के तरीकों को चेक करे. यदि उसमें कोई सुधार लाना है तो यह उस व्यक्ति या उस सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होगी, जिससे काम अच्छे तरीके से सही से किया जा सकेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी श्रमिक स्किल्ड हों या सभी श्रमिकों के पास एक समान योग्यता हो, लेकिन यदि सुपरवाइजर है तो वह निर्देश देकर अपने काम को अपने तरीके से सही से करवा सकता है. बट द ओपिनियन गिवन बाय कॉलमुला वाज नॉट अग्रीड बाय प्लिनी, who was the author of natural history. He does not agree to the method of supervision. प्लिनी, ये आप कह सकती हैं कि इन्होंने सुपरविजन के तरीके को समर्थन नहीं दिया. उनका अपना ओपिनियन है. वे कहते हैं कि ग्रुप बनाकर, अर्थात श्रमिकों को एक गैंग की तरह तैयार करो और उस पर एक सुपरवाइजर रखो, ये सही नहीं है. अब ये उनका अपना मानना है, लेकिन आज हम और आप भी इस सुपरविजन के तरीके का समर्थन करते हैं बच्चों. हम सभी करते हैं, चाहे आपके घर पर हो, चाहे आपके स्कूल में हो. हम सभी इस सुपरविजन का समर्थन करते हैं. इसके साथ ही साथ मनुष्य नहीं है तो न हमारी आज की नेट टेक्नोलॉजी, आपका सीसीटीवी कैमरा है जो सुपरवाइज करता है सिक्योरिटी एज वेल एज द सुपरविजन ऑफ वर्क. So we all support. Of course, we are not against the opinion of Pliny. Must be whatever circumstances were prevailing at that time. According to that, he must have given his opinion. But at present, we all follow the system of supervision. ठीक है, हो सकता है उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही हों जिससे प्लिनी ने कॉलमुला के सुपरविजन के तरीके का समर्थन नहीं किया.
लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में हम और आप सभी सुपरविजन के तरीके को मैनुअली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. The next is children about in Alexandria, the frankincense was produced by the people, and those people were identified by their dressing. अर्थात अगरबत्ती बनाने का काम होता था. आप जानती हैं छोटी छोटी फैक्ट्री होती हैं जहाँ छोटे छोटे उद्योग स्थापित होते हैं, कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं. तो प्लिनी का कहना है कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों को उनके ड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता था. ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हर व्यक्ति को उनके ड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाए. लेकिन आज हम अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को, काम करने वाले लोगों को ड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं. एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल. If you go to the hospital, you will find a little different dress of the doctor, then of the nurses, then of the class 4 staff, so on. So with that only we come to know which person is doing which type of work. And the second is about law of 398, which referred to the workers that some branding should be done of workers to identify them. लॉ 398 रेफर करता है कि एक प्रकार से एक ब्रांडिंग होती है, अर्थात दाग प्रथा का सिस्टम. दाग प्रथा के द्वारा मालिक अपने श्रमिकों पर, अपने अंडर में काम करने वाले श्रमिकों पर, वह अपने काम करने वाले लोगों पर वह नियंत्रण रख सके. तो इसका विरोध भी किया गया. तो हम और आप भी शायद इसके पक्ष में नहीं हैं कि एक श्रमिक को दाग प्रथा के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए. इफ यू रिमेंबर, द सिस्टम वाज फॉलोड बाय शेर शाह एंड देन इट वाज फॉलोड बाय अकबर द ग्रेट. What did they do? Branding of horses. Of course, those kings, they very need to brand their horses because their horses were sent to the battlefield. So just to identify their horse, they used to brand the horses. So branding of animals is something much different than branding of human being. आपको शायद याद होगा, शेरशाह और उसके बाद सम्राट अकबर ने भी घोड़े पर दाग लगवाने की प्रथा का आरंभ किया था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जितने भी राजा आते थे, जितने भी लोग युद्ध के लिए आते थे, सभी के घोड़े होते थे और हर राजा उन्नत किस्म के घोड़े रखता था. तो अपने घोड़े दूसरे घोड़ों के साथ ना मिल जाएं, अपने घोड़ों की उचित पहचान हो, इसके लिए घोड़े पर दाग लगवाने की प्रथा का आरंभ शेरशाह सूरी ने किया और उसके बाद सम्राट अकबर ने किया. तो बच्चों, ये अलग बात है कि घोड़ों पर दाग लगवाना और फिर मनुष्य पर उसका वही तरीका अपनाना आइडेंटिफाई करने के लिए शायद अमानवीय है. ओके. Then comes about the private employees. They made an arrangement with workers in debt to them, in which it was said that labor is always in debt to his employer. To give back his taken amount means एम्प्लॉयज़ कहते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि जो श्रमिक होता है वो अपने मालिक का सदैव ऋणी है. जीवन भर वह अपने स्वामी की सेवा करती रहे और वही उस सेवा के द्वारा ही वह अपने स्वामी, अपने मालिक का ऋण चुका सकता है. So at that time it is said that even some parents used to sell their children to the employer for 25 years बेटा. मतलब इस प्रकार स्वामी का ऋणी वे श्रमिक अपने आप को मानते थे कि अगर उस ऋण को वे नहीं चुका पाते थे तो वे अपने बच्चों को, उन मालिकों को करीब 25 साल के लिए बेच देते थे. मतलब 25 साल के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, अब वह मालिक हमारे उस बच्चे का इस्तेमाल 25 साल तक अपनी सेवा करवा कर अपना ऋण उससे उतरवाएगा, अर्थात उसका जो राशि है वो उसको चुकाएगा. So even if you remember in one of the sessions I told you that the father had the right over the children even to decide their life and death. याद आ रहा है, एक सेशन में मैंने कहा था कि इस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज था जहाँ पिता को अपने बच्चे के जीवन और मृत्यु पर भी अधिकार था. वह इस बात का अधिकारी होता था कि वह उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे. उसके लिए कोई विरोध में कानून नहीं था. So contracts were signed in the services of the employers. इस परिप्रेक्ष्य में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे एम्प्लॉयर और माता पिता के बीच कि वे अपने बच्चे को उनके सेवा के लिए कितने वर्ष के लिए छोड़ दे रहे हैं या खुद वे अपने मालिक की सेवा कितने वर्ष तक कर लिए हुए कर्ज को चुकाएंगे. So all these things children
इट वॉज नॉट वेरी ह्यूमन। आज ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, क्योंकि आपको अगर याद है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत और राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी के आधार पर हमें सारे अधिकार दिए हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक मनुष्य को है। यदि हमारे अधिकारों कोई हमें देने से वंचित करता है तो इसके लिए हम न्यायालय की सहायता लेते हैं। So the time is changed. We are lucky. We Indians are lucky to use our rights given to us, guaranteed to us by the Indian Constitution. Thank you, my children. God bless you.